friends, welcome to Pram Classes channel. Friends, today we will know about a new theory of mass communication that is necessary for all type of students like CUET, like PRO and UGC and TN NET exam. Friends, you will know what is teaching on the Pram Classes channel. If you did not or do not press the bell icon or subscribe the channel, friends, you should press the bell icon and subscribe the channel for this. Friends, today's theory is authoritarian theory of mass communication. Friends, this theory comes from the philosophy of Plato. Friends, this theory describes that all forms of communications are under the control of government authorities, elites, and influential bureaucrats. It can be at any stage, like state, like center, like district level. Friends, you will ask why the authorities are necessary. Friends, that is, the authorities are necessary to control, to media, to prevent or protect to us from the national threats which we are getting through the national level or any form of communication. Friends, these authorities have all types of rights to permit the license and make certain censorship in favor of national security and peace in a country. Friends, that is necessary because many times if media violate against the government policy for license, then authority have right to cancel the license and revoke it. Friends, we know that media is fourth pillar of a democracy. But friends, you know that democracy means by the people, to the people, and for the people. Friends, the media play a pivotal role in a democracy, but many times it has been changed in national threats and its direct effect on national peace and security has been shown. Then the authoritarian theory is necessary in a democracy or democratic country. Friends, we know that if we or government control the media, the truth will be biased. But friends, it is very necessary because in democratic country also their media can be biased and he can be go through only one party. That is very crucial and harmful for public. Friends, one word came in this theory, that is censorship. What is censorship? Friends, in censorship, the situation is controlled under the government authorities
The government controlled all things in favor of peace and security of country. In this matter, the rights of media has been limited also. There are many types of censorship in a country. Some of these: political censorship, moral censorship, religious censorship, military censorship, and corporate censorship. Friends, in our country, if you go in our past, then we will know that our country also bear the censorship and media censorship also. That time, the Gagging Act has been provoked and ruled. Friends, there are many limitations of this theory. Like, we have right to information, but authoritarian theory is against this right. If the media will control, then truth will not come out to the people. Friends, media, we can say that media is fourth pillar, but in modern era, the media is working as a most important component of freedom. If the authoritarian theory will be ruled, then the media freedom will be stopped and we will not get all news from any form of communication. Now friends, we know this theory in Hindi also, as Param Classes channel say, and its motive that media in Hindi and English. तो दोस्तों, आज की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उसको हिंदी में कहते हैं अधिनायकवादी सिद्धांत. अधिनायकवादी मीन्स निरंकुश. मतलब क्या होता है कि किसी भी देश में मीडिया का एक सरकारी महकमे के अंतर्गत या उसके नियंत्रण में होना अधिनायकवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है. दोस्तों, यह जो थ्योरी है ना, ये सिद्धांत है, वो कहां से आया? यह प्लूटो के जो दार्शनिक सिद्धांत है उसमें से निकल के आता है. दोस्तों, ये जो है, ये अधिकारिता क्यों जरूरी है, अथॉरिटीज क्यों जरूरी है, या नियंत्रण क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि मीडिया, सारा नहीं, कोई भी ऐसा फॉर्म है जो मीडिया का बाइस्ड हो जाता है, सही खबर नहीं दे पाता है, लिंक से हट जाता है, अपने जो ये है कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स है, उससे थोड़ा सा भटक जाता है, तो उसे वापस लाइन पर लाने के लिए क्या जरूरी है? कंट्रोल करना जरूरी है. कई बार लाइसेंस भी रद्द किया जाता है दोस्तों, क्योंकि आजकल जो है ना, इसे प्रोफेशन माना जाने लगा है मीडिया को. और मीडिया को जब से प्रोफेशन या पेशा माने जाने लगा है, तब से ऑथोरिटेरियन थ्योरी ज्यादा पॉपुलर हो गई है दोस्तों, चलन ज्यादा हो गया इसका. क्योंकि आज लोग लेते तो लाइसेंस हैं, मीडिया के नाम पे बहुत लूट खसोट भी हो रही है दोस्तों देश के अंदर. होता क्या है, मीडिया के नाम पर सही दरों पे, सस्ती दरों पे जमीन खरीद ली जाती है और वहां पे और बिजनेस शुरू कर दिए जाते हैं. तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए करना क्या पड़ता है? कोई एक संस्था, गवर्नमेंट की संस्था होती है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण में लेते हैं. कई बार दोस्त क्या होता है कि इनकी जो न्यूज होती है उससे देश में बहुत बड़ा भूचाल मच जाता है, बहुत ज्यादा वो बवाल मच जाता है. तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए सरकारें क्या करती है कि उसके अब तो लाइसेंस को रद्द करती है या उसे प्रतीक्षा सूची में रख देती है कि हम आपको आगे वापस दे देंगे. इसके लिए क्या किया जाता है? या तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और सेंसरशिप लागू कर दी जाती है. सेंसरशिप वह अवस्था है दोस्तों किसी भी देश में जबकि सारी जो है ना प्रक्रिया है देश की, सारा
जो भी कार्य है वो सारे सरकार के हाथ में आ जाते हैं। जो भी व्यवस्था है वो सरकारी क्यों लेती है? क्योंकि उन्हें देश के अंदर क्या बनाना होता है? शांति और सुरक्षा कायम करनी होती है। दोस्तों ऐसे में मीडिया भी नियंत्रण से बाहर नहीं रह पाता। किसी भी देश में जो सेंसरशिप है ना, वो 5 तरह की होती है प्रमुख रूप से। वो है राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक, मिलिट्री, सैनिक या सैन्य और कॉरपोरेट व्यावसायिक। दोस्तों यदि आप कुछ सालों पहले के इतिहास पे जाएंगे, भारत के इतिहास पे, तो आपको पता लगेगा कि सेंसरशिप कई बार लागू हुई है दोस्तों। और उस टाइम हमारे आजाद भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर भी सेंसरशिप लागू हुई है। उस समय यज्ञिक एक्ट वाली स्थिति बन गई थी। यज्ञिक एक्ट क्या होता है? गला घोंटू कानून, जिसके अंदर मीडिया पे इतना ज्यादा पाबंदियां लगा दी गई थी कि सही चीजें बाहर नहीं आ पाती थी। और वो मीडिया खाली उसी की बातें करता था जिस दल की सरकार है, जिस दल की गवर्नमेंट है, जो कि सत्ता में है। तो दोस्तों आज की जो थ्योरी है ना, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है, कुछ इसकी सीमाएं हो। क्या है? यदि अधिनायकवादी सिद्धांत लागू रहा तो मीडिया नियंत्रण में आ जाएगा। ये तो बात सही है, लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, पिंजरे के अंदर तोता बैठा है, उसको आप सोने की कटोरी में भी यदि दाने दोगे ना तो वो नहीं खाएगा। इसकी बजाय वो भूखा रहना पसंद करेगा यदि वो आसमान में स्वच्छंद उड़ता है। तो दोस्तों मीडिया की स्वच्छंदता खो जाएगी क्योंकि वो नियंत्रण में आ जाएगा और जैसा वो ब्यूरोक्रेट्स चाहेंगे, जैसी सरकारें चाहेगी, वैसा ही उनका बखान करेगा। तो दोस्तों ये सीमाएं हैं। और एक राइट टू इंफॉर्मेशन, जो सूचना का अधिकार है हमारा, उसका गला घोंट दिया जाएगा। क्योंकि हम जो जानना चाहते हैं कि देश में क्या हो रहा है और इसमें सेंसरशिप के दौरान क्या हो रहा है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मीडिया सत्ता के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा दोस्तों। तो इन सबको जानने के बाद हमारे दिमाग में एक तो जरूर विचार आया होगा कि कुछ तो कंट्रोल हो और कुछ फ्री हो। तो दोस्तों इस तरह की भी थ्योरी है, इस तरह का भी सिद्धांत है। लेकिन दोस्तों यदि हम साथ में पढ़ते जाएंगे ना तो हमें याद रखने में या रिमेंबर करने में या उसे याददाश्त में लाने के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपने देखा कि अधिनायकवादी या ऑथोरिटेरियन थ्योरी क्या है और कहां से आई और इसका जन्म कहां से हुआ। तो फ्रेंड्स आज के इस जो चैनल था, आज का चैनल के इस एपिसोड में हमने बहुत से क्वेश्चन सामने आए हैं, जिसमें एक प्रमुख ये सवाल आते हैं। फर्स्ट है कि यह थ्योरी फ्रॉम वेयर द थ्योरी वाज ओरिजिनेटेड। दिस कम्स फ्रॉम द philosophy of Pluto. Second, what is the main aim of authoritarian theory? To control the media in favor of country. Third, what is censorship? What are the type of censorship? 5 type of censorships are these. तो दोस्तों आपको जानने के लिए करना क्या होगा, हर रोज एक नई थ्योरी बताई जाती है और ये सारी की सारी थ्योरीज है ना दोस्तों। अभी आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीआरओ की वैकेंसी निकाली, आपको तो पता ही होगा। तो उन सब के लिए प्लस जो आपका इसका एग्जाम आ रहा है, आपका सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम है, एनटीए यूजीसी नेट का है और इसी तरह के बीजेएमसी एमजीएमसी का एंट्रेंस एग्जाम है या मेन एग्जाम है, इन सब के लिए थ्योरीज काम आएगी। आपको करना क्या होगा, आपको इनमें से लिखना होगा ताकि आपको याद भी हो जाए, सुन के भी याद हो जाए, लिख के भी याद हो जाए। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको वापिस मैं बता देता हूं। आपको यदि जानना है कि हर रोज परम क्लासेस क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाएगा कल, तो आपको करना क्या होगा, बेल आइकन दबाना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में वो चीज लिख देनी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो टॉपिक जिसके बारे में आप तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों एक चीज और बता दूं, परम क्लासेज अब आपके लिए पीआरओ के लिए भी क्लासेस लेके आ रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है दोस्तों। परम क्लासेज के पीआरओ की क्लासेज, स्पेशल क्लासेज और कम टाइम में श्योर सक्सेस सीरीज की तैयारी करने के लिए
आप बेल आइकन दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जो भी आपको जानना हो लिखिएगा और देखते रहिएगा प्रेम क्लासेस चैनल का हर एपिसोड, जो कि आपको हर तरह से आपके लिए सहयोगी साबित होगा। और तब तक के लिए, जब तक हम कल मिलेंगे, इस पे कल वापस मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय, तब तक देखते रहिएगा और उत्साहवर्धन करते रहिएगा प्रेम क्लासेस चैनल का। धन्यवाद।